Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, and we continue the job of me teaching and you learning of the subject of Organization of Commerce and Management. Specifically हम क्या काम करते आ रहे हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स से हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं और चैप्टर नंबर 2 के ऑलमोस्ट आखिरी पायदान पर, स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं. ओके, इम्पोर्टेंस एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न आप सबको पता है. यहाँ पे हेनरी फेयर जी ने पहले क्या कहा था वो भी पता है. हम इस मुद्दे पे आ जाने वाले हैं. कंट्रोलिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है, and at the very last इसका importance क्या है. We will go to it. For the past I think 5 lectures, planning, organizing, staffing, directing, coordinating being the last one we have covered up, and we are in the last function of management. So let's see हमको क्या समझना है. What do you mean by controlling? Well, quite simple. ये जो चीज़ है controlling, ये कहाँ पर काम आती है? अगर आप कोई चीज़ चला रहे हो, like a train driver, a train motorman, okay, not well, I say तो ट्रेन नहीं चलाते हैं, but ट्रेन चला रहा है. Keeping the train in his control is very important. क्यों? अगर कुछ गड़बड़ होता है, okay, जो बाजी पर लगा है जान, वो खुद का ही नहीं, उसके ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हैं, विच कैन, अगर एक मुंबई लोकल की बात कर रहे हैं, वो हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं. तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. ओके, द सेम थिंग फॉर एनी वन हैंडलिंग एन एनिमल, वेदर इट इज़ द महूट, जो एक बड़े से विशाल से एलिफेंट को हैंडल करता है, उसके पास भी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल होना उस जानवर पर बड़ी आवश्यकता, नेसेसिटी होना चाहिए उसका. ओके, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, पढ़ते हैं. कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, comparing the actual performance with the predetermined standard performance. This right now will be a little bit tricky for you. सर आपने बोला कंट्रोल करने का गाड़ी को, आपने बोला जानवर को कंट्रोल करने का, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. देखो भाई, ऊपर दिखता है, क्या दिखता है आपको? अ लॉट ऑफ मसालाज, अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. अच्छा, वो कप में उतना ही क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, उस शेफ ने कहा इतना 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 तैयार करो, मैंने कर दिया. तो आई रिपीट, ये क्या है? ये है प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस.
प्री डिटरमाइंड, काम करने के पहले मुझको बोला गया है ये वाला 1 चम्मच, ये वाला 10 चम्मच, ये वाला 1 वाटी, ये वाला पूरा वाटी, ये वाला आधा वाटी, मैंने लाके रख दिया माल। ये है प्री डिटरमाइंड पहले। बट जैसे ही मैं खाना बनाने को शुरू किया, मैंने वो पकवान बनाने को शुरू किया, मुझको ये पता चला अरे ये तो खत्म हो गया, ये तो और लगेगा मेरे को, ये वाला तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा ही मेरे को लगता था। आई रिपीट, काम करने के बाद यू विल बी लाइक अभी तो मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी मैं सोचता हूं क्या क्या सोचा था मैंने पकाने के पहले, कितना माल लगेगा, कितना कितना लगेगा, और पकाने के बाद में, कुकिंग करने के बाद कितना माल मेरे को एक्चुअली लगा है। सो होता क्या है, दैट पर्टिकुलर शेफ कुक वो बोलेगा इतनी माल की जरूरत नहीं, या ये वाला पर्टिकुलर मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, अगली बार ये वाला कम होना चाहिए। आई रिपीट, व्हाट इज ही डूइंग, जो सोचा था और जो हकीकत में हुआ उसको वो कंपेयर कर रहा है, और उसको पता चल रहा है कहां पे क्या बढ़ गया और क्या कम हो गया, कहां पे कौन सा माल ज्यादा लगा और कौन सा माल कम लगा, कहां पे टाइम ज्यादा लगा, कहां पे टाइम कम लगा। और उसके बाद वो स्टडी करेगा उसको, बिकॉज एवरी टाइम आप कोई काम रिपीट करो, रिपीट तो करना ही है ना। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू रन इन दी ओलंपिक्स, बराबर, what do you do every day? You train to run 100 meters, 400 meters. You run, you run, you run. But when you run the second time, you want an improvement. बेहतर होना चाहिए. When you run the 50th time, you want a lot of improvement. कि what क्या गड़बड़ हुआ 49 टाइम में, कंपेयर करो, वीडियो को चलाओ, एनालाइज करो, मैं स्टार्ट कैसे लेता हूं, मैं कितनी बड़ी छलांग लगाता हूं, हाउ डू आई रन, व्हाट आर द बॉडी मूवमेंट्स। एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अपने लास्ट परफॉर्मेंस को अपने करंट परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा, और उसका कोच उसको बताएगा यहाँ पे देख मिस्टेक हुआ, वहाँ पे देख मिस्टेक हुआ, अगली बार ये मिस्टेक अवॉइड कर, बेटर होगा परफॉर्मेंस। दैट इज व्हाट इज डन इन कंट्रोलिंग। जो सोचा था इतना माल लगेगा, और जो एक्चुअली काम करने के बाद आपको पता चला, आप कंट्रोलिंग में जो फर्क आ रहा है उसके बीच में, बिटवीन द थिंकिंग एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियलिटी, उस फर्क को दूर करने की कोशिश करते हो। फर्स्ट टाइम पे फर्क आएगा, सेकेंड टाइम पे भी आएगा, 10वीं बार भी आएगा, बट कभी ना कभी वो फर्क थोड़ा 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 कम होगा। उसके वजह से वेस्टेजेस डेफिनेटली मटेरियल का कम होगा, उसके वजह से कॉस्ट कम होगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, what are you trying to have a control over? You are trying to have a control over the wastages. Okay, for that आप क्या कंट्रोल करते हो, what you think। जब भी एक काम स्टार्ट होता है, okay, there will always be when a individual player, a cricket player, he knows मेरे को 3 मैचेस मिलने वाले हैं, मैं बनाऊंगा 300 रन, और उसके बाद में उसने बनाया 100 रन, 100, वो बोलेगा क्या गड़बड़ हो गया, देख लेता हूं मैंने किस टाइप का बॉल में डिटेक्ट नहीं कर पाया, कैसे मैं आउट हो गया, मेरी टेक्निक में क्या गड़बड़ी हुई। तो पहले उसने सोचा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका हुआ, अब वो कंपेयर कर रहा है, और वो डिविएशंस, डिविएशन का मतलब क्या होता है, अरे मैंने सोचा था इतना डिग्री मेरे को घुमाना पड़ा, हाँ, उसको कहते हैं डिविएशन। ये डिविएशंस क्यों हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं। ओके, हु आर द गुड पीपल जिन्होंने कंट्रोलिंग का डेफिनेशन दिया है। सो फिलिप कोटलर, एक्सट्रीमली फेमस, सेज कंट्रोल is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer together। तूने क्या सोचा था, और एक्चुअली तूने एक एग्जाम दिया, तूने एक मॉक टेस्ट दिया, पढ़ने के लिए लोग देते हैं ना मॉक टेस्ट। अब मैंने सोचा सर इतना मेरे को मिलेगा 85, कितना मिला 70 मिला, सर क्या गड़बड़ हो गया, हाँ नेक्स्ट टेस्ट में वो गड़बड़ जो है ना 15 का कम करो और कम करो, सो दैट जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। ओके, डेल हेनिंग ने क्या किया है, क्या कहा है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी, ओके, ऑफ
performance with planned action. Again, the thinking is quite simple. What did you think and what actually happened? उसके बीच में conformity मतलब सेम करने की कोशिश कीजिए. एंड नूट्स ओडोनल जो मेरे पीछे है, इनका क्या कहना था? मैनेजरियल कंट्रोल, ऑब्वियसली ना, इट इज द मैनेजमेंट हु आर गोइंग टू हैव अ कंट्रोल, इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, सोचा, एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशन, जो अलग डिविएट हो गया, कितनी डिग्री से ये हट गया, हमने हमारा टारगेट क्या था और कितने दूर जाकर हमारा निशानी लगा है, टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स. ओके, अगेन 3 लोगों ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है. अगर आपको एक याद रहता है बढ़िया होगा. मूविंग ऑन, नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन ऑल पॉसिबिलिटी. इसमें 10 मुद्दे आपको दिखने वाले हैं. द फर्स्ट मुद्दा, कंट्रोलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फुलफिलिंग गोल्स of organization. What do you mean by goals? Everybody, every student, you as a student, he, she should have a goal. मतलब सर फुटबॉल में ऐसा गोल मारना है? नहीं बाबा, तुमको पढ़ाई में कितने ऊंचे स्तर तक जाना है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है, या आपको कौन सा फील्ड पसंद है, आपको नौकरी कहाँ पर चाहिए, कुछ तो सोच के रखा होगा. क्योंकि what you think, okay, accordingly आपकी तैयारी होनी चाहिए. okay, if you are someone जो सर मैं IPS ऑफिसर बनूंगा, मैं IRS ऑफिसर बनूंगा, तो उसके लिए तो पढ़ाई काफ़ी मजबूत करनी पड़ती है. ओके, ऐसे यूनिट टेस्ट को अगर आप मजाक में लोगे तो उतने बड़े, you will not reach your goal. कंपनीज जस्ट लाइक यू हैव एन इंडिविजुअल गोल, बराबर कंपनीज का भी एक गोल रहता है. एंड अगर कंट्रोलिंग का काम बराबर से किया जाए तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी उस गोल तक पहुंचने में क्या होती है? काबिल होती है. नेक्स्ट थिंग, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस. ओके, थोड़ा काम जल्दी हो गया यहाँ पे. ओके, दिस हैज बीन कॉमन इन आई थिंक ऑल द 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मेरे पास जो समय है, कितना समय है तेरे पास? 24 आवर्स है. तो सबके पास होता है वो, बट वो मेरा दोस्त है ना, वो तो 20 घंटा सोते ही रहता है. तो देख, वो टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है. बाद में कभी ना कभी वो रोएगा अगर वो आज कुंभकर्ण बन के बैठा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिसोर्स आपके पास है, ओके, यूज इट टू द बेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट. टाइम है, अच्छा यूज करो उसका. पैसा है, और अच्छा यूज करो उसका. टैलेंट है, और बढ़िया यूज करो उसका. वट एवर इज योर रिसोर्स, मेक श्योर इफ यू डू कंट्रोलिंग, देन डेफिनेटली अगर मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करे तो जो रिसोर्सेज उनके पास है, मैन का, मशीन का, मनी का, वो उसे बढ़िया यूज कर सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. हे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, जब एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता. इट्स नेवर परफेक्ट. ओके, इतने में ही काम होना चाहिए, नहीं रे बाबा. खत्म होने के बाद में पता चलता है नहीं रे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था. एक इंसान इतने में काम ही नहीं कर सकता है. ये प्रोडक्ट 2 घंटे में बना ही नहीं सकता है, 90 मिनट में बना ही नहीं सकता है. तो तुम्हारा स्टैंडर्ड जो तुमने लेबरर को दिया, जो तुमने सबऑर्डिनेट को दिया, ये वाला जो है ना, ये मोबाइल, ये रिमोट तुमको 15 मिनट में बनाने का है, अरे होता ही नहीं है. उसको फिट विट करने जाते तो 30 मिनट तो जाता ही है. तो आपने जो उसको स्टैंडर्ड दिया ना, क्या इतने में काम होना चाहिए, वो गलत था. ओके, हाँ तो चलेगा. तो अगर कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से किया जाए तो आपका कंट्रोल इस बात पे होगा कि जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है, अगर वो गलत है, वो नेक्स्ट टाइम और रियलिस्टिक हो और बेहतर हो. यू विल इन कंट्रोलिंग टॉक टू द एम्प्लॉइज, टॉक टू द सबऑर्डिनेट्स एंड यू विल टेल देम, देखो हमको लगता है एज टॉप मैनेजमेंट 15 मिनट में होना चाहिए, बट देन हम थोड़ी ये काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो. क्या आप बोलते हो आप कितने टाइम में ये कर सकते हो? दे विल टेल, सर हमको 20 मिनट्स लग जाते हैं, हमको 22 मिनट्स लग जाते हैं, हमको 25 मिनट्स लग जाते हैं. ताकि आपका जो नेक्स्ट टाइम का स्टैंडर्ड बनेगा, ओके, कि इतने में काम हो जाना चाहिए, हाँ, वो थोड़ा रियलिस्टिक रहेगा, थोड़ा रियल रहेगा. ओके, हाँ.
फोर्थ मुद्दा इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग का, मोटिवेट एम्प्लॉइज। हे यू रिक्वायर मोटिवेशन एवरीवेयर। अ स्मॉल चाइल्ड, बराबर, मतलब ऐसे मसल नहीं बनाने हैं, बट अ स्मॉल चाइल्ड हु इज हेजिटेंट, जो डरता है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको पूरे क्लास में खड़े रहकर बात करना है, आपको आगे आकर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहकर बात करना है। दैट इज मोटिवेशन। You have to motivate the people who are under you. A teacher's job is to motivate his students. A leader's job is to motivate his people. A manager's job is to motivate his subordinates. Because when motivation is done in the correct manner, automatically a gentleman, a person, a child feels strong. And somebody who himself feels strong will lead to better job quality of work. Next, ensures order and discipline. Order and discipline कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. If you are a singer, you can't take your voice for granted. There has to be discipline in what you eat. मतलब सिंगर जिन लोग थोड़े हेफ्टी है, क्या वो गाते नहीं है? तो मतलब बिंदास कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. ओके, ऑयली चीज़ें या ऐसे पदार्थ जो आपके गले को क्या करा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं. इफ़ यू आर अ सिंगर, इफ़ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, ओके, इफ़ यू आर अ पब्लिक स्पीकर, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से परहेज करें, दूर रहिए. इफ़ यू आर समबडी हु इन 6 months wants a transformation, 5 months wants a transformation, और आपको वेट्स पिकअप करने हैं, तो खाने पे आपको परहेज करना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट अ लॉट. यू हैव टू नो कि एक दिन में आप कितने कैलोरीज का इंटेक कर सकते हो. सो वेरी सिंपल. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कब आता है? अगर कंट्रोल आप मैनेजमेंट का सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, 6, वो एक दूजे की मदद करते हैं कि तू काम करेगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, तू काम करेगा तो इन दोनों का काम हो जाएगा. यस. तो जब कंट्रोलिंग होता है, ऑटोमेटिकली काम किसका करना है? जो सेंटर में है, बट थोड़ा काम ये वाला बंदा, वो वाला बंदा, वो वाला बंदा, सब लोग काम कर रहे हैं. हाँ, तो इसको सही दिशा में अगर पहुंचाया जाए तो ऑटोमेटिकली जो मेन बंदे का काम है उसका काम बड़ा खूबसूरत सभी को नजर आएगा. व्हेन एन एक्टर्स एक्टिंग इन अ मूवी इज अप्रिशिएटेड, उसके टीम का भी उतना ही सराहना होना चाहिए, बिकॉज हिज टीम हैज पुट इक्वल एफर्ट्स इफ नॉट लेस सिमिलर टू द एक्टर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, बड़ा वर्ड है, साइकोलॉजिकल प्रेशर. एंड मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक, मतलब वो प्रेशर सुन के ही हवा निकल जाता है. सर किस पे प्रेशर डाला जाना चाहिए? अगर कंट्रोलिंग होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल बी साइकोलॉजिकल, मतलब थिंकिंग, मेंटल माइंड, मानसिक. प्रेशर होता है लोअर लेवल स्टाफ पर काम अच्छे से करने का. प्लीज रीड द परफॉर्मेंसेस जिस तरह काम किया गया है आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स. व्हाट डज स्टैंडर्ड मीन? ये वाली चीज 20 मिनट में बन जानी चाहिए. तुमने तो 25 मिनट्स लगा लिए, अरे तुमने तो 30 मिनट लगा लिए, अरे तुमने तो और अच्छा 40 मिनट लगा लिए, डबल टाइम. तो हम मैच कर रहे हैं. इधर 20 मिनट है, तेरा 30 है, उसका 40 है, मतलब यू शुड इम्प्रूव. वरना क्या करेंगे? वरना हम आपका पगार आपको काट के देंगे, क्योंकि आप सुस्त बिहेवियर दिखा रहे हो. सो आई रिपीट माई सेल्फ अबाउट द एम्प्लॉइज आर वेरी वेल अवेयर that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. If the job is to be done in 20 minutes and you do it in 20, full payment. If you do it in 19, additional payment, bonus payment. हाँ, so the employees have a check. वो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ कोई ध्यान नहीं दे रहा. नहीं, मेरा काम कितने टाइम में हो रहा है, कैसे क्वालिटी का हो रहा है, इसका चेक किया जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया गया है
कि इतने माल में काम हो जाना चाहिए, इतने समय में काम हो जाना चाहिए, मुझको वो मेरे पे प्रेशर बना हुआ है कि मैं मेरे काम को इम्प्रूव करूं और बेटर. सो व्हेन यू से साइकोलॉजिकल प्रेशर, इट इज नॉट अ बैड प्रेशर बट इट इज अ गुड प्रेशर. ओके, जहां पे एक एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट पॉइंट, ensures organizational, पूरे कंपनी का efficiency and effectiveness. Very important कि when the job of controlling is done properly, all the various departments, सभी लोग एक ट्रैक पे, एक दिशा में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन काम करते हैं. फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड making managers responsible, motivating them for higher performance and achieving departmental coordination. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. अगर सारे department, okay, not just the people in the department, if all the departments work, have got team spirit, have got unity of direction, okay, are completely motivated, are given the proper direction and the proper commands, then automatically पूरे कंपनी का जो effectiveness है और जो efficiency है वो सिर्फ increase होने वाली है. Okay, next point in the importance of controlling is the following: builds good corporate image. Okay, now what do you mean by good corporate image? Well, ऐसा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उनकी छवि, मतलब जो लोग जो उनके बारे में सोचते हैं, जिस प्रकार उनको देखते हैं, वो अच्छा बने. ऑटोमेटिकली जब एक कंपनी की छवि, इमेज अच्छी रहती है तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ते हैं, और एक कस्टमर 2 को 2, 20 को 20, 200 को लेकर आ सकता है. ये कैसे किया जा सकता है? अगर कोऑर्डिनेटिंग का जो फंक्शन है अच्छी तरीके से किया जाए. अगर आप यहाँ पे पढ़ो, कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यस, क्योंकि लोगों को एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, एक लेवल बताया जाता है कि इतने में काम हो जाना चाहिए, ताकि तो उसके जैसे सारी कंफ्यूजन जो है मिट जाती है. मिनिमम डिविएशन in predetermined standards and actual performance results into the progress of business. Okay, little technical. What do you mean by that? If you just tell a worker, ये प्रोडक्ट है, इसको बनाओ, वर्कर बना लेगा, बट वर्कर पूरा दिन ले लेगा, बोलेगा मुझको तो बोला नहीं कितने में ये वाला प्रोडक्ट बनाने का है, तो मैंने मेरे पूरे शिफ्ट में 8 घंटे के शिफ्ट में ये एक प्रोडक्ट बनाया. हाँ, मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट मे बी 1 घंटे में बन सकता था, इस जैसे और 8 प्रोडक्ट बन सकते थे, बट नोबडी टोल्ड हिम. हाँ, बट जब स्टैंडर्ड बनाया जाता है, मतलब उसको ये लिख कर दिया जाता है, उसको ये बोल कर दिया जाता है कि देखो ये नोटिस बोर्ड, यहाँ पे लिखा गया है ये वाला प्रोडक्ट 1 घंटे में बन जाना चाहिए. हाँ, तो वर्कर को पता है, एम्प्लॉई को पता है, सबऑर्डिनेट को पता है, अच्छा बॉस बोल के गए हैं, मैनेजर बोल के गए हैं, तो 1 घंटे में तो मेरे को ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कंप्लीट करने की. तो उसके वजह से 1 घंटा नहीं होगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, उसको क्या कहते हैं, मिनिमम डिविएशन. बट जब उसको कुछ नहीं बोला, 1 घंटे का काम उसने 8 घंटे में किया. आप सोच सकते हो वेस्टेज कितना हो गया रहेगा. सो ऑल ऑफ दिस removes confusion, and because it removes confusion, the image of that particular organization कि उनका प्लानिंग जो है बड़ा अच्छी तरीके से हुआ है, बढ़ता है. नेक्स्ट एंड लास्ट मुद्दा, acts as a guide. What do you mean by a guide? Well, normally आपके लिए तो गाइड जो आप एक्स्ट्रा हेल्प के लिए लेते हो ना, कुछ लोग तो पूरी हेल्प के लिए गाइड ही खरीदते हैं. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ स्टडी गाइड एज सच, बट येस, अगर आप कोई टूरिज्म के लिए कोई ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे आपको जगह के बारे में कुछ नहीं पता है, कौन से मॉन्यूमेंट्स है, कौन से हिस्टोरिकल लोकेशंस है, कौन से लैंडमार्क है, कहाँ पे जाना है, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो गाइड हेल्प करता है, आपका टाइम बचाता है और आपको सटीक नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है. तो कंट्रोलिंग डज द सेम थिंग. इट सेज कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन. ये ऑलमोस्ट इन ऑल मुद्दा स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है. ओके, कि इतने में काम हो जाना चाहिए. मैनेजर्स भी उस स्टैंडर्ड को देखते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी उस स्टैंडर्ड को देखते हैं और पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि उतने में ये काम निपट जाए. wherever necessary they can take the help of these standards and can achieve desired results जो सोचा गया है. does controlling function acts as a guide for everyone कि बाबा आपको अगर confusion है कि ये काम कैसे
कितने में, कितने टाइम में, कब हो जाना चाहिए, आपको जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो डेफिनेटली आपको यूज़ करेंगे. सो इट इज़ अ गाइड for the managers as well as the subordinates. Eventually, after our 10 points comes the very important thing. What? Sir, how do I remember these 10 points? Well, if I say, please have a look at these, I wouldn't say gentlemen, but these cute doggies, okay, who are in a cup. Doggies in a cup are going to help you remember the 10 points that are connected to controlling. Okay, how is that going to happen? Well, कुछ इस तरह आपको याद रखना है. डॉगीज कप. नाउ समबडी विल से, सर ऐसा थोड़ी होता है, डॉगीज के लिए कोई कप थोड़ी होता है. अरे आप स्पोर्ट्स चैनल्स देख लीजिए, डॉगीज की काबिलियत पर, डॉगीज एक डॉग को, ओके, जो कुछ लोगों के लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए फैमिली का एक मेंबर होता है, वो अपने ओनर का कौन सा कमांड किस तरीके से पूरी करता है और वो बेहतर तरीके से पूरी करेगा. मे बी इन द कंट्री ऑफ इंडिया यू मे नॉट हैव अ टूर्नामेंट फॉर दैट, बट डेफिनेटली इन मेनी अब्रॉड कंट्रीज टूर्नामेंट होता है. एंड द बेस्ट ग्रूम्ड डॉग, दिखने वाला, एंड द बेस्ट बिहेव्ड डॉग, ओके, द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड डॉग, उसको कप जरूर मिलता है. नॉट दिस काइंड ऑफ अ कप बट एन एक्चुअल अवार्ड, डॉगीज कप. How is that going to help you remember the 10 importance of controlling? Is this as follows? ऊपर जो लिखा गया है, ensures order and discipline, ensures organizational efficiency, fulfilling goals of organization, acts as a guide, which was the last mudda, builds good corporate image, motivates employee, accuracy of standards. Cup facilitates coordination, efficient utilization of resources and psychological pressure. Doggy's cup will help you remember the 10 points, or at least the maximum points, which is connected to the importance of controlling. I hope जितना पिछले कितने करीबन 30 मिनट में मैंने आपको समझाया है, आपको जो ये इम्पोर्टेंस है पूरी तरह से समझ में आ गई है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसको आपको याद कैसे करना है वो भी आप समझ गए हो. अगर आपको ये समझ के पूरी तरह से समझ में आ गया है तो लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर लीजिए. अगर आप डिसलाइक करते हो, कोई चर्चा की बात नहीं है, बट आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम सुधार हमारे इस लेक्चर्स में कैसे लेकर आ सकते हैं. अगर आप प्रोत्साहना, एनकरेजमेंट हमको करना चाहते हो तो 2 अच्छे शब्द लिख दीजिए, कोई गम की बात नहीं है. दैट एनकरेजमेंट, दैट बूस्ट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड बाय एवरीवन हु इज एट दिस पर्टिकुलर चैनल. स्टीवन सर मेक्स इट ईजी. ओके, सो वेरी क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए. दोस्तों तक इस चैनल और लेक्चर्स के बारे में जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपने बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखा करें. आई होप safety and love always surrounds you. Good day to all of you. God bless. Bye for now.